I'm sure my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in the last class, I just introduced the idea of a quadratic equation. Do you have any doubt before I begin with this quadratic equation? No, sir. No, sir. Okay. So solving a quadratic equation, now we already have identified that any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, that is a quadratic equation, and we already started factorizing a quadratic equation using the method of factorization. There will be splitting the middle term actually, which we are going to use over here, and there is another method, named method, that will follow very soon, the quadratic formula. But as of now, using the method of factorization, and let's consider few questions. I think we have discussed this or similar question. Anyway, to begin with, say seventh question करते हैं. 25x square minus 10x minus 8 is equal to 0. तो करिए इसका splitting. How will you do it? Basically, what we want to locate two numbers whose sum is minus 10. Answer answer the numbers of sir 25x square and sir minus 8 into. It's multiplied. Yes. So that is, the product should be minus 200. Yes, sir. Yes, sir. So what are those two numbers? That's the initial question. सोचिए ध्यान से. Sir, ये तो वैसे देख के पता चल रहा है, कुछ सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, but still check it out. I'm waiting. Prime factorization. sir, your voice is very low. Hello. Sir, you are audible, sir, but your voices are coming very low. एक मिनट. हेलो. हेलो. Sir, it's still low. ईयरफोन लगाए हैं, उसमें इतना तो लो नहीं होना चाहिए. अभी और भी क्लास मेरी थी. नहीं आ रही आवाज़ आपको? सर मेरे को तो सर लो आ रही है. वेट, अब मुझे सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा फिर. हेलो. Yes, sir, sir, now you're audible. Yes, sir. ओके. So, what are those two numbers? Sir, the numbers are sir minus 20 and sir plus 10. Yes, minus 20 and 10. That once you found those numbers, check करके बिल्कुल देख लेना that they are satisfying both the conditions. तो यही था इस क्वेश्चन का मेन चीज. उसके बाद तो ऑब्वियसली दिस इज, आप इसे लिख देंगे -10 को -20
x and plus 10x, and this minus 8 is equal to 0. I hope it's Sir, clear. excuse me, sir. Yes. Sir, are you sharing the screen, sir? Because if you are sharing, sir, it is not visible. Check Yes, this sir, out not is now. visible. Okay. So minus 10 को लिख दिया minus 20x and then plus 10x. Combine Yes, sir. first two and last two. Sir, first would be sir 5x common and sir 5x minus 4 and sir then plus 2 and sir 5x minus 4 equal to 0. तैयार हो रहा है ये सॉल्व. यस सर मैंने निकाल लिया. चलो. So Sir, finally x is sir 4 by 5 minus 2 by 5 or and sir x 4 by 5. your required answer. Check out this question. Now we are looking for two number. एक तो identify कर लो, standard form है ये. ax square plus bx and then plus c is equal to 0 की form में. So sum should be 5 So sum should be sir 5. and product should be So 4 root 3 into minus 2 root 3. that is product होना चाहिए कितना? कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करके आंसर? तैयब बताओ जरा, आप सोचो एक बार जरा. सर -8. नो यार, ये तो 4 इंटू 2 ये हो गया. चलो यहाँ -8. फिर व्हाट इज √3 इंटू √3? Sir 3. ये होता है. दैट इज ए बी होना चाहिए 24 minus 24. -24. तो ये दो नंबर्स अब आपको ऐसे ढूंढने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. तो वही प्रोडक्ट का हमने ये ले Sir, लिया. the numbers are given. Sir 8 and sir 3. यस. Plus 8 minus 3. 2 and 2 3. सो क्लियरली नंबर्स हो गए. क्या बता रहे हो? 8 Sir and 8 and 3. Sir plus 8 and sir minus 3. डन. तैयब यस सर. मेन यही सोचना था. ये करने के बाद 5x को लिख दिया किसी भी तरह से, मतलब पहले 8x लिखा और फिर ये -3x लिख दिया. Minus 2 root 3. फर्स्ट टू Sir, the लास्ट. common will be sir in sir first it would be sir 4. नॉट ओनली 4. Sir 4x. 4x कॉमन So 3 root 3x plus 4. Sir 2. +2. और नेक्स्ट में से तैयब आप बताओ क्या कॉमन आ रहा है इन नेक्स्ट इन दोनों? -√3. यस, -√3 कॉमन है. और फिर तो चलो आइडिया लग चुका है. इट शुड बी द सेम. जो ये कॉमन था वो ही होगा. सो दैट 4x minus √3 into √3x plus 2 is 0. और फाइनली x is Sir 3 root 3 sir 4 and sir second is or -2 minus 2 root 3. सर मैंने वाला सॉल्यूशन भेजा था. yes. अब देखो आप दोनों कहाँ पर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुई थी. ये प्रोडक्ट निकालने में. Yes sir, sir in multiplying. अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते तो मुझे कैसे पता होता कि 24 से फिर ये आने वाले हैं. तो यू मस्ट कुड हैव स्टक्ड इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप ओनली. तो बाद वाली चीजें तो आई एम श्योर ये आप आराम से कर लोगे. ये जो चीज सोचनी थी इसके लिए ये आना जरूरी है. तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस हैं 8th क्लास की. इन्हें ध्यान से समझिए. और इस तरह के वन ऑफ द मैं कहता हूँ बोर्ड के फेवरेट्स में रहे हैं
क्वेश्चंस जो फैक्टराइज के भी सिंपल अगर पूछने होते तो वो तो आप 8 से पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो उससे तो थोड़ा Yes, sir. एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्ट करेंगे ना. चेक आउट दिस नाउ. How should we start? Any idea? क्या लगता है? Sir, by LCM. LCM? Sorry, sir, I didn't see that, sir, equal sign. Sir, I thought it was a different sign. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो चेक करिए, x प्लस 3 के साथ आ जाएगा 2x माइनस 2x minus 3. और And sir, 3x minus 7. Sir, x plus 2 and sir, 3x minus 7. ओपन द ब्रैकेट बोथ ऑफ यू एंड रीअरेंज एंड टेल मी द क्वाड्रेटिक जो आ रही है. करिए, दोनों लिखिए. आई एम वेटिंग. I'm sure both of you are solving this. Yes, sir. ठीक है, मैं बहुत इसके स्लो लिख रहा हूँ. Are you getting this equation? Yes, sir. तो हमने कोई नई चीज नहीं करी है. जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड रीअरेंज द टर्म्स, ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू LHS. Yes, sir. और इसमें करने का ना एक इजी वे क्या रहता है, प्रेफर करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बना दो. वो कैसे होगा? Sir, by taking sir 3, sir minus 2x square to sir RHS. नो, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1. चेक इट आउट. ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आई कैन राइट द सेम इक्वेशन एज दिस. तैयब, इज इट ओके? Yes, sir. हो गया अर्जुन, समझ आ गया ना क्या करें? Yes, sir. बस अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सोचेंगे. करिए, आई एम वेटिंग.
Sir, -4 and sir -1. Okay. You sure about that? चेक करके देखना। आपने क्या बोला? Actually, sir, -4 and sir +1. -4 एंड +1 कह रहे हो। स्टिल एक बार जरा चेक करके देखना। सर 5 and -1। 5 एंड -1 आप भी एक बार जरा चेक करना। ये तो बिल्कुल ही गलत है ऊपर वाला, नीचे वाले को थोड़ा सा ध्यान से सोचो। Sir, -5 and sir 1. -5 एंड 1, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेसिक चीजों में अगर अभी भी इतना गलतियां इसमें बार बार रहेंगी तो चेक इट आउट। x² -5x, आप इस -4 को लिख रहे हैं -5 एंड +1x and then this. Rest you can do easily. I will not solve that. Yes, sir. So found the values also. पर आप पहले तो -4 एंड 1 बता रहे थे, तो उससे तो सारा वैसे ही हो जाता ना। फाउंड वाला केस Yes, बाद sir. में आएगा। सर मेरा भी यही इक्वेशन आई थी, लेकिन सर मेरा आंसर 5 और -1 आ रहा है। कैसे पॉसिबल है, आप बताना जरा मुझे। हाउ इज इट पॉसिबल? आपके पास इक्वेशन ये नहीं आ रही जो मैंने बॉक्स में बनाई हुई है? यस सर, ये भी यही आ रही है। तो इस इक्वेशन में सम क्या चाहिए मुझे? -4। प्रोडक्ट क्या चाहिए? Sir, -5. तो अगर आप कहते हो कि ये आंसर है कि A 5 है और B -1 है, एक बार जरा इनका Sir, it would be sir 4. सम इनका 4 नहीं हो रहा, जबकि मुझे -4 चाहिए, तो इजंट इट रॉन्ग? यस सर। तो आंसर तो यूनिक होगा, एक ही वैल्यू आएंगी इस तरह की A और B की। आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट दैट आप यहां देखो, ये एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, तो कितना आ जाएगा? 14। Sir, x plus 3, sir 14. Sir, minus x plus 3. दिस इज ओके? Yes, sir. तैयब, इज इट ओके? यस सर। गलत है, क्योंकि आप इसके बाद तो 14 + 3 को 17 करने वाले हैं। गलती समझ आई क्या हो रही है भाई? ये ध्यान से समझो यार। ये आप बॉड मास ये भूल जाते हो कि ये तो एक ही टर्म थी। तो माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देयर विल बी अ ब्रैकेट एक्चुअली, और Okay, sir. देन यू ओपन द ब्रैकेट, तो ये -3 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो जो आपका 17 आता ऊपर, द वे रेड कलर से अगर आप लिख रहे थे, आपने ये बताया था, जबकि आना क्या था? 11 - x अपॉन x + 3 इज 5 अपॉन x + 1। तो चेक करिए, वही मैं आपको फिर बता रहा हूं, गलती सिर्फ आप पहले स्टेप में करते हो नॉर्मली, और वो गलत तो आगे तो किसी को देखना भी नहीं है, चाहे आपको सारा आगे फर्दर सही आता हो। डू नॉट Okay, फॉरगेट। sir. इसके बाद क्या करेंगे? Sir, आफ्टर cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई इन अ यूजुअल मैनर। ठीक है, आंसर इसका है 4 एंड 1। मैं बता देता हूं आंसर भी, 4 एंड 1, सो दैट यू कैन वेरीफाई। होमवर्क में करके देख लेना, वेरीफाई, राइट? Okay, sir. Form the equation and now take the LCM properly, क्योंकि मुझे मालूम है पहला स्टेप ही गलत होता है LCM बेसिक लेने में।
आई एम वेटिंग। सी नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे देते हैं एग्जाम में, यहाँ तो इन्होंने ब्रैकेट दे दिए साथ में, शायद उससे आप आसान कर लेते ठीक, बट मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसे आएगा। नॉर्मल एलसीएम है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। ये लिया था दोनों ने एलसीएम। यस सर। क्या आएगा अब ऊपर? तैयब पहले आप बताओ क्या लिखूं यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर न्यूमरेटर में? x minus 7 minus x minus 4 माइनस x minus 4। यस, समझ आ गया ना, इसके भी माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। यस सर। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अर्जुन, ये x से x कैंसिल हो गया, पता चल रहा है। यस सर। ये और ये कैंसिल, कितना आ Yes, जाएगा ऊपर? सर -12। एक बार फिर से बोलना, बताओ। सर इट वुड बी सर -7 एंड सर -4। तो -12 हो जाएगा ये। ओह सॉरी सर -11 सॉरी सर। यार ये सॉरी बहुत महंगी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट व्हाट शुड वी डू? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? ये क्रॉस करा, और अगर ध्यान से नोट करो, यहां पर भी ऊपर 11 है और यहां भी 11 है। एक तरह से ये 11 से 11 कैंसल भी तो हो जाएगा ना, दोनों ही न्यूमरेटर में है। तो -11 मैं क्रॉस कर देता हूं वैसे, चलो, और ये 11 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। अब 11 से 11 कैंसल, यस सर। सो दैट -30 बच गया, इसके इक्वल। ओपन द ब्रैकेट भी कर रहा हूं, x² -7x प्लस 4x -28। रीअरेंज, तो दिस -3x हो गया, और कितना आ जाएगा यहाँ? सर 2 सर एक्चुअली यस सर 2। बस ये तो सिंपल इक्वेशन आ चुकी थी, आ गई है। नाउ यू कैन डू इट इजीली, यू हैव योर आंसर इन अ सिंगल स्टेप। आराम से फैक्ट ये हो रहा है स्प्लिटिंग। नोट दैट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये ऊपर ना, ये x कैन नॉट बी -4 and 7, राइट? ये दिया हुआ है ना? यस सर। क्यों? सर बिकॉज सर इफ वी सर रिमाइंडर वुड बी 0। रिमाइंडर माने यस, अगर मैं x की जगह यहाँ -4 रखूंगा क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर वुड बी 0 एंड सर होल फ्रैक्शन वुड बी 0। fraction would not be 0, that would not be defined, defined ही नहीं होगा। anything divided by 0 is not defined. Got it? Yes sir. So consider this question. अब धीरे धीरे मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा और वो होमवर्क में आएंगे।
आप चेक करिए, द आइडिया इज सिमिलर. You need to take the LCM. Yes, sir. Sir, x minus 3 and sir, x minus 5. क्या आएगा? क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस में ये x -2 के साथ Sir, x minus 5. और फिर बीच में प्लस आ गया. और तैयब ये क्लियर है? यस सर. इज इक्वल टू कितना आएगा? Sir, 10/3. 10/3. Open the bracket in the numerator, denominator, cross multiply and simplify. Right? Okay, sir. आंसर जो है इसका, that is one of the value is 6 and other is 7/2. So verify in your homework. Okay, sir. Of course, I don't need to discuss this question. As usual, LCM and simplify to get the equation. Yes, sir. The answer is -17 और 3. ठीक है, verify. Sir, they have given sir x is not equal to sir -3 and sir 1/2 and sir -9/7. हाँ, Okay, sir. तो Sir, ये I तो thought sir 3 was with sir 1/2. आप चेक करो ना, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता और ये 0 नहीं हो सकता. Yes, sir. Hence this condition. Shall we move? Yes, sir. यस सर. पक्का? चलो. Yes, sir. Now this is a slight different kind of a question. ये कंडीशन दी हुई है, आप अपने आप भी सोच सकते हैं. यहाँ आपको सॉल्व फॉर एक्स है, ये पक्की बात है. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स. तो एक भी क्या लगता है हमें, वैसे जनरल अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, 1/a + b + x दिया हुआ है, 1/a + 1/b + 1/x. कॉमन सेंस सेज विच इज ओके कि मैं यहाँ एलसीएम ले लूं. क्या आ जाएगा? ab, Sir, abx. यहाँ आएगा bx, Big bx. Sir, here would be sir ax and sir here would be sir ab. then I will cross multiply Yes, and sir. get the equations वगैरह. Yes, sir. Find it, that will make it actually very complicated unnecessarily. इसीलिए I will not use this approach. अब Sir, I have a doubt. बताओ. Sir, I guess sir you will tell sir any other method for solving this question. So, sir, if we had sir any question like that, so we have to solve like that only. यस, बिल्कुल वो पहचान बन जाएगी क्वेश्चन की कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आएंगे. मतलब पहला स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ये Okay, sir. यहाँ 1/x है, प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा? Sir, -1/x. That's it. इसके बाद स्टार्ट टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाई और बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Okay, sir. लेट्स चेक इट आउट. Sir, in sir LHS, sir, LCM would be sir abx. a plus b B plus plus x into x एज यूजुअल ये. Okay, sir. और ऊपर क्या आएगा? तैयब न्यूमरेटर में बताओ क्या आएगा? नॉर्मल एलसीएम लिया है, Sir, x. इधर x आ जाएगा, फिर माइनस ये Sir, bracket sir a plus b plus x. ये ब्रैकेट मत भूल जाना. और इधर Here एलसीएम would be sir ab and sir b plus a.
So now cross multiply. पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा सा. Okay, sir. When you open the bracket, ये आ जाएगा. Yes, sir. अभी मैं फिलहाल ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाला करने का पर्पस बता देता हूं. ये आ गया. नेक्स्ट, x से x कैंसल Yes, sir. एंड लुक केयरफुली न्यूमरेटर. Sir, माइनस minus a and sir minus a plus b. और नीचे एज इट इज. Yes, sir. और इधर भी तो ध्यान से देखो a प्लस बी ही लिखा हुआ है. Yes, sir. a b. सही है. वैल्यू को भी Yes, sir. समझ आ रहा है. आपसे पूछा, आपने जवाब Yes, sir, नहीं आ रहा है. दिया. अब क्या करेंगे? Sir, cross Cross multiply multiply. and sir then we will cut some minus a plus b and sir a plus b. यस. तो इसलिए आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल कर दिया. यहाँ पर भी कर सकता हूँ. और Okay, sir. क्या लिखा जाएगा? क्रॉस करा. So yes, sir, it would be sir ab minus ab equals bracket open a plus b plus x bracket close into x. अब सिंपल क्वेश्चन है. ओपन द ब्रैकेट. ये क्या आ गया? ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर. X square. रीअरेंज द टर्म्स. x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab इज 0. ये माइनस ab इधर आ Yes, sir. 0. Will you solve this equation now? Sir, it is sir already middle term splitted, so sir we can do it by taking out the common. Perfect. Okay, sir. First two combine, last two combine. So it would be sir x plus a. Yes. चलो वो सॉल्व हो जाएगा. Okay, sir. राइट. तो आंसर क्लियर है. माइनस ए एंड माइनस बी टाइप्स कुछ ऐसे आ रहा है. दैट यू कैन इजीली चेक. Yes, sir. होमवर्क में करके देखना कि अब आपको थोड़ी पता है कि भाई यहाँ पर कि भाई माइनस वन बाई एक्स लेफ्ट साइड में लेकर आना था. आप तो नॉर्मली ऐसे शुरू करते हैं. कोई भी होता वो यही मेथड Yes, होता. sir. तो आप देखना कि वो स्टक हो जाएंगे या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बन जाती है. इसीलिए ये स्मार्ट टेक्निक है. जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे धीरे धीरे जो आपको समझने पड़ेंगे. तो पहला स्टेप प्रैक्टिस से याद हो जाता है बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, और उसके बाद वन कैन सॉल्व वेरी इजीली एज वी हैव डन. Okay, sir. वन ऑफ द पॉसिबल वे ऑफ कोर्स एलसीएम ले लूंगा और सॉल्व कर सकते हैं. Yes, sir. जब कॉमन आप अप्रोच देखिए वो ये जाएगी. ये कितना है? So equals sir 34 by 15. So when I take the LCM, Sir x plus 1 equals sir x square and sir plus x plus 1. X square. whole square भी आएगा. Right? Okay. बस इसके बाद तैयार. Yes, sir. Are you getting this? Yes, sir. Open the So now square, open the bracket. cross multiply, you can get the answer. So this is of course one possible method जो normally हम करते हैं. But if you observe question carefully, some specific observation रहा इस term में और इस term में. Yes, sir. Sir, both are sir reciprocated. रेसिप्रोकेटेड है एक दूसरे के. इसका Yes, sir. मतलब अगर मैं पहली टर्म को से y कह देता तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाती? So 1 by y.
और इक्वेशन क्या बन जाती? Sir, y plus 1 by y equals 34 by 15. तैयब, यू गेटिंग दिस? नो सर। सर ये फिर से बताइएगा। इसे मैंने अगर x मान लिया और y मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? इसका रेसिप्रोकल है या नहीं है? यस सर। उल्टा ही तो करा है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? y का रेसिप्रोकल 1 बाय y। तो ये टर्म 1 बाय y हो जाएगी। यस सर। और फिर मैंने ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया कहां पर? गिवन इक्वेशन में। तो ये क्या माना था हमने? फर्स्ट टर्म y मानी थी। Yes, sir. नेक्स्ट टर्म क्या मानी थी? Sir, 1 by 1 y. बाय 1। 1 बाय y आ गई थी। चेक इट आउट। अब आप एलसीएम ले लीजिए एंड सिंप्लीफाई। ये देखो, ये आ गया। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई, That equals 34y. रीअरेंज। 50y square minus आई हैव equal यूज्ड y plus 15 equals 0. आई हैव Middle term splitting. substitution method to solve this question। इसके बाद splitting the middle term करेंगे और देखिए उससे आगे भी कैसे होगा। splitting करिए। Sir, the sir 15 into sir 15 would be sir 225. तो हम कौन से नंबर ढूंढ रहे हैं? सम शुड बी -34, Yes, sir. प्रोडक्ट शुड The बी answer should be sir 225. 225। Sir 5. पी के ऊपर चलो, पी के ऊपर, फिर 5 के ऊपर। Answer then 5. So 225 is, So 3 into 3 into 5 into 5. अब सोचो जरा इससे क्या बन रहा है? Sir 9 into 25. यस, माने तैयब, आर यू गेटिंग दिस? एक्चुअल में वो नंबर क्या बनेंगे? -25 एंड And sir plus 9. Minus 9. +9। दोनों माइनस के आ रहे हैं, गलती नहीं, राइट? Yes, sir. कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। Sir common is sir 5y. Sir 3y minus 5. And sir second sir common sir minus 3. Sir 3y minus 5. यस सर। 5y minus 3 and sir 3y plus 5 minus 5. राइट। तो इससे मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई? Sir y value is sir 3 by 5 or sir और 5 by 3. 5/3। 3। ये मैं Now we have to put in sir x by x plus 1 equals y. यस, एक मिनट। सो चेक दिस आउट। इसके बाद अब Sir x by x plus 1 equals 3 by 5. ये हमने तैयब एज्यूम करा था y के इक्वल यस सर। स्टार्टिंग में, इसीलिए आप y की वैल्यू रख दोगे एक बार 3/5 एक और बार 5/3। एक बार रख देंगे 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई और गेट द आंसर 3x plus 3 और 2x is 3। Sir x equals 3 by 2. x आ गया 3/2 और यहां से Sir it would be sir
So the value is coming some minus 2x equals 5 and so the x equals minus 5 by 2. I hope आपको भी Yes, sir. सी यहाँ पर अगर आप ये जैसे ऊपर रेड कलर से जो दिखाया है, अगर मैं ऐसे कर देता कोई दिक्कत नहीं आती, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं बनता। बट व्हाट विल हैपन इफ आई टेक से दिस क्वेश्चन, यहां वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट इफ यू नोट केयरफुली सम So ऑब्जर्वेशन, reciprocal. ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। Yes, sir. So 2x minus 1 upon x plus 3 equals y and so एक it's मिनट, reciprocal. यस, ये y ले लिया तो अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन बिकम्स, सीधा बता देंगे 2y Y minus 3 1 y equals 5. करिए। Okay, sir. बोथ ऑफ यू सॉल्व इट। कंप्लीट आंसर बताओ x का क्या आएगा। यही आ रही है इक्वेशन। Yes, sir. करिए स्प्लिटिंग। क्या हुआ स्प्लिटिंग? So the splitting would be sir minus 6y and sir plus y. Yes. Combine first two and last two. 2y common, y minus 3 plus 1 के साथ y minus 3, which gives me y minus 3 into 2y plus 1 is 0 and y would be 3 or minus 1 by 2. अब हमें तो x निकालना था, तो हमने ये एज्यूम किया था y के इक्वल। दिस implied there will be two different possibilities. This is 3 or
y आपने जो माना था दैट कुड बी -1/2. ओके, Yes, sir. बस इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई to get the answers in your head. Sir, first is x equals -8. ओके, चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा. तैयब, एनी डाउट? -8 नहीं आ रहा, चेक करिए. -10 आ रहा होगा. अब आप वही प्लस माइनस की गलती हमेशा करते हो. Yes, sir. कितना आ रहा है? Sir, -10 only. देन तैयब, वो इज इट? सर -10 आ रहा है। हाँ, एक वैल्यू -10 आ रही है और दूसरी चेक कर लेना -1/5 है. So this is your required answer. A very similar question for your homework. Simple identification है. I will not solve it. ठीक है, ये तो आराम से हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर, हो जाए। Sir, we will do, sir, with by this method only. और कोई ऑप्शन आप बताओ जरा. No, sir. बहुत No, sir, मुश्किल there's हो no. जाएगा. कोई भी Yes, sir. सोचोगे, राइट? तो इसका आंसर -7 एंड 0 है. आप नोट कर लीजिए ताकि वेरीफाई कम से कम कर लेना. एक मिनट, ये मैं शायद गलत कुछ देख गया. द आंसर इज 1 और 0. ठीक है, Okay, sir. यस सर। check out in your homework. Now consider this question. अब पावर्स वाले जनरली बोर्ड में पहले आते थे, अब बहुत कम हो गई है उसकी फ्रीक्वेंसी, बट आइडिया इज सिंपल टू अंडरस्टैंड इफ यू नोट केयरफुली. फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है? 5 पावर x इंटू Sir, 5 power x. Sir, yes, sir. और प्लस Sir, 5 power 2 and sir into 5 power -x. व्हाट इज RHS? Sir, 5 cube plus 1. 126 हो गया. Okay, sir. 5 क्यूब इज 125. Yes, sir, plus 1, 126. नाउ नोट केयरफुली. इसे मैं 5 इंटू 5 पावर x लिख सकता हूँ फर्स्ट यस टर्म, सर। और नेक्स्ट टर्म को 25 अपॉन 5 पावर x लिख सकते हैं. a की पावर -x 1 अपॉन a की पावर x होता है. 8 की करा Yes, हुआ. sir. क्या करना चाहिए अब मुझे? नोट केयरफुली. सम सब्स्टिट्यूशन. क्या करूं? सब्स्टिट्यूट 5 पावर x को अगर आप y रख देंगे, सोचो ध्यान से. So it would be, sir, 1/5, sir, equal 1/y. so that my First would be क्या बनेगी? 5y 5y, yes, sir. So plus 25/y equals 126. आई होप अब इसके बाद का भी सॉल्व हो जाएगा. Best returns are LCM. LCM will solve and then 5y square. covers also. Okay, sir. Do this question in your homework.
check out this question, a very similar one. एक फॉर्मूला बताता हूं, a की पावर mn a की पावर m इंटू n होता है। याद है ये चीज? Yes, sir. और इसे a की पावर n टाइम्स m भी लिख सकते हो। तो ये आइडिया यूज करना है फर्स्ट टर्म में। So it would be said 2 and sir bracket sir 2 and sir bracket x. क्या लिखूं इसे? So it would be said 2 raised to the power 2 and sir then bracket into x. सॉल्व नहीं होगा, वह एक्सप्रेशन सही है बट इसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सही, अब कुछ और सोच पा रहे हो? नो सर। मैं यहाँ अभी तो बताया है, आप mn लिखो या nm लिखो, वो एक So ही then sir 2 raised to the power x and sir 2. यस, ऐसे लिखेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो गिवन इक्वेशन ये थी। नोट केयरफुली, 2 की पावर x का स्क्वायर, ये मैंने इस टर्म को लिख दिया, Yes sir. माइनस 3 इंटू, ये क्या बनेगा, 2 की पावर x 2x plus into 2 की power 2 plus 32 equals 0. 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस, चेक करो ये कितना है, 4 Sir 4. इंटू 3 Yes sir. 12 12 इंटू 2 की 2 की पावर, power x. प्लस 32। क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्या किया जाए अब तो So then sir minus 32 minus 12. क्या Sir, I was saying to sir minus 32 and sir 12. Sir, I didn't see that multiply sign. ओके, नोट केयरफुली, 2 पावर x को y रखा, इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर Minus 12y plus 32 equals 0. गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या हो रहा है, Sir, -8 and -4, plus 32 equals 0. first two last two combine, Sir, y common and sir y minus 8 and sir 2, so 4 commons y minus 8 equals 0. So y minus 4 and sir y minus 8. So y equals 4 and sir y or y equals 8. अब आप चेक करिए नाउ, 2 की पावर x को हमने y सब्स्टिट्यूट किया था, Yes sir. इसका मतलब 2 की पावर x आ गया 4, Yes sir. y आया है या 8 आया है, Yes sir. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड आंसर, x कितना So है, x may be say equals to 4 को लिख दिया स्क्वायर, yes sir 8 को लिख दिया 2 क्यूब, 2 cube. बस अब पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। चेक करो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Yes sir. म्यूट कर लो, बीच में आपका आवाज आती है बहुत। यस, यस सर। Yes sir done. सो पहचानना आपको है इस तरह के क्वेश्चन में
एक क्या सब्स्टिट्यूशन या किस तरह की ये लेना रहेगा कि रेसिप्रोकल टाइप अगर मुझे दिखाई दिया पिछले क्वेश्चन में 5 पावर माइनस एक्स, वो रेसिप्रोकल में लेकर आ गए तो वहां पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा, इस क्वेश्चन में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रैक्टिस हार्ड, ये 7th 8th के रूल्स हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग हमने 8th क्लास की यहाँ ढंग से नहीं लगाई तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेक आउट दिस क्वेश्चन। Solve the following equation using कोई नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। सर 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप चेक करिए, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं। मैं ए और बी नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी नोटेशन में ए यूज हो चुकी है। आपको वो दो नंबर्स जो चाहिए उनका सम कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर सम? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूं। एक्स का सर 4x सर 4 माइ सर बट सर देयर इट इज रिटन 4x स्क्वायर। तो व्हाट सम होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके सर। 7th क्लास की बात हो रही है। प्रोडक्ट होना चाहिए ए फर्स्ट टर्म 4 इंटू सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही, अब समझ आया? यस सर। सोचो अब जरा कैसे होगा इसके बाद। हाउ यू आर गोइंग टू स्प्लिट दैट। ये चैलेंजिंग है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो स्टार्टिंग में ही है इसका मेन लॉजिक जो आपको सोचना है। अब मेन आपको क्या रियलाइज करना है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें, -4a को मैं क्या -2 इंटू ए प्लस बी, एंड नेक्स्ट मैं 2 के साथ ले लेता हूं, और -2 इंटू ए माइनस बी। कैन वी राइट लाइक दिस? सोच के देखिए जरा, ब्रैकेट ओपन करना, यस सर। -2a -2b, यस सर। फिर -2a एंड +2b, ये और ये कैंसल, यस आ गया ये -4a। सर। तो ये चीज जो सोची गई है, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, किन दोनों का, ये -2 इंटू ए प्लस बी यस सर। इंटू -2 इंटू ए माइनस बी। चेक इट आउट, ये -2 -2 4 यस सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हम चाहते थे। यस सर। इसका मतलब मेरे पास नंबर क्या हो गए? -2 इंटू ए प्लस -2a प्लस b एंड -2a माइनस b। यस सर। है ये चीज, यस सर। ये चैलेंजिंग है और आपके सामने ही है। ये तो पुराना है अभी के बोर्ड में आया हुआ है और इस तरह के आते रहे हैं, बट द पॉइंट हियर इज, यहाँ बाई चांस ये क्वेश्चन कह दिया यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, लेटर ऑन वी विल लर्न अनदर फार्मूला। तो फार्मूला से अगर मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो दैट वुड बी लिटिल बिट इजियर, बट ये स्प्लिटिंग से भी आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल आ सकता है कि स्प्लिटिंग से करके बताओ। चलिए, क्या हो गया ये एज इट इज। अब मैं इस टर्म को क्या स्प्लिट करने वाला हूं, -2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स,
फिर Yes, sir. And the minus 2 a minus bx और plus लास्ट टर्म एज इट इज. a square A minus square b plus B square square. minus b square. कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू. अभी भी ध्यान से सोचना है कंबाइन करने के बाद क्या होगा. So कॉमन the common will be said 2x. एंड यहाँ बचेगा So 2x minus a plus b. ब्रैकेट मत भूल जाना. ये आएगा तैयार. Yes, sir. और नेक्स्ट कॉमन देखो क्या दिख रहा है. माइनस ऑफ a माइनस बी. ये क्योंकि ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. A minus B. तो a माइनस बी विद नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही यहाँ 2x बचेगा और माइनस में ऑब्वियसली A सेम plus बच B. गई. बस इसके बाद ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई. तो 2x माइनस a प्लस बी और दूसरा बनेगा 2x. Minus A minus B. यस दैट इज 0. और फर्स्ट से क्या आ गया. दिस इज 0. या तो ये 0 है या सेकंड टर्म 0 है. Yes, sir. और 2x आ गया इधर a प्लस बी और 2x आ गया A minus b. minus b, giving me the answer a plus b by 2 और A minus B by 2. your required answer. Okay, sir. Okay, sir. सो दैट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन के वो तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये तो मिनिमम है ऑफ कोर्स जो आप होमवर्क में कंप्लीट करने वाले हैं. एंड प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो मैंने आज की प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करे हैं, उन्हीं को एक बार ध्यान से सॉल्व करके देखना. And are you both prepared for your test for Sunday, chapter 1, real Yes, number? sir. चलो ठीक है. I will share the test Sunday morning. Okay, sir. चलिए Okay, sir. ending the class now. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Yeah, good night. Bye bye.